ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا دیور ایک دن اچانک شادی کر کے بیوی کو گھر لے آیا، لیکن میری دیورانی ہر وقت نقاب میں رہتی۔ جب میں اسے دیکھنے کی بات کرتی تو میری ساس کہہ دیتی وہ پردہ کرتی ہے، اس وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ میرا دیور بھی اپنی بیوی کو چھپا کر رکھتا۔ ایک دن گھر میں میری دیورانی اور میں ہی تھی۔ دیورانی چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو جلدی سے اس کے پیچھے گئی، اور جب دیورانی کو بغیر نقاب کے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری دیورانی تو… میرا نام حورالعین ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، میرا چاچو بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی، میں بڑی تھی۔ میرے گھر والے اکثر میرے رشتے کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ میرا ابھی تک رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ میرا بھائی بھی نہیں تھا، اور اکثر خاندان والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ہو۔ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ میرے خلاف باتیں بتا کر انہیں بھگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے میری عمر بھی کافی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ انکار کر کے چلا جاتا تھا۔ مجھے خود یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہونے لگتی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ گھر میں فارغ رہ کر میں تھک گئی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ کسی اسکول میں چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لوں، لیکن میری اماں کہنے لگیں تم نوکری نہیں کرو گی، ایسے کیسے تمہیں نوکری کرنے دیں۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ میں اب اور اکیلی نہیں رہ سکتی، اس گھر میں اکیلے رہ کے تھک گئی ہوں۔ پر میری اماں کہنے لگیں اچھا تو پھر اب جلد ہی تمہاری شادی کر دیں گے۔ لیکن اماں کی یہی بات ہمیشہ ہوتی تھی۔ میں نے اماں کو کہا بس کر دیں اماں، نہ جانے مجھ میں ایسی بھی کیا برائی ہے جو میرا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی تو وجہ ہوگی نا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میری اماں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم پرفیکٹ ہو۔ اماں کی بات سن کر میں نے طنزیہ انداز میں کہا ہاں میں تو پرفیکٹ ہی ہوں نا، جو بھی آتا ہے میری چھوٹی کزن کو پسند کر کے چلا جاتا ہے، وہ مجھ سے پیاری جو ہے اس وجہ سے۔ میری بات سن کر میری اماں کہنے لگیں تم ایسا کیوں سوچتی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں اماں، وہ میرا ہر جگہ سے حق مار لیتی ہے، آپ لوگ بھی اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میری کوئی اہمیت ہی نہیں آپ کی زندگی میں، پھر مجھے پیدا ہی کیوں کیا، آپ پر تو میں بوجھ ہی ہوں۔ میری باتیں سن کر میری اماں مجھے کہنے لگی کیا پاگلوں والی باتیں کرتی ہو، بس تمہارا دماغ خراب ہوا پڑا ہے، اگر تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو میری طرف سے کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا ہاں وہ تو میں کروں گی، اب مجھ سے یہاں اور بند ہو کر نہیں رہا جاتا، مجھے بھی بس نوکری کرنی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میری کزن اکثر میرے پاس کتابیں لے کر آتی اور پڑھنے لگ جاتی تھی، لیکن آج مجھے اس پر بھی غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے غصے میں کہا چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ پہ کیا ہوا ہے، میں نے تو آپ سے کوئی بات نہیں کی، مجھ پر غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ زیادہ معصوم مت بنا کرو میرے سامنے، اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، بہت ہی چلاک ہو تم، ہر جگہ سے میرا حق کھا جاتی ہو۔ وہ حیرت سے بس مجھے دیکھ رہی تھی، اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن اب وہ مجھے بہت ہی چلاک لگنے لگی تھی۔ میں نے غصے میں اس سے کمرے سے نکال دیا اور کہا کہ اب میرے کمرے میں مت آنا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، آئی سمجھ؟ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے زیادہ سخت لہجے میں اس سے بات کر لی تھی، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، وہ تو مجھے اپنی بڑی بہن کہتی ہے اور میں یوں ہی اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ اب مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھی، سامنے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی، وہ کتابوں پر نظر ٹکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی اب آپ کو میں بھی اپنے کمرے سے نکال دوں؟ اس کی بات سن کر مجھے پھر سے شرمندگی ہوئی۔ میں نے دھیرے سے کہا سوری، میں پتہ نہیں کیوں غصے میں آ گئی تھی، سوری۔ میں نے پیار سے اس سے کہا تو وہ مجھے کہنے لگی آپ میری آپی کی طرح ہیں، پھر بھی جب ایسی باتیں کرتی ہیں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس سے پیار سے کہا کہ آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اگلے دن میں گھر کے قریب اسکول میں گئی، وہاں مجھے نوکری مل گئی۔ اماں نے مجھے بھی منع کیا تھا نوکری کرنے سے، لیکن میں کہاں منع ہونے والی تھی، میں نے تو بس کہہ دیا تھا کہ مجھے نوکری کرنی ہے۔ میں نے نوکری شروع کر دی تو اماں ابا نے بھی میرے پھر سے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اب وہ جلد ہی میری شادی کرنا چاہتے تھے، نہ جانے کیا ہو گیا تھا ان کو۔ اب تو میں بھی پریشان رہتی تھی
कि न जाने मुझ में ऐसा भी क्या है जिसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। मैं सुबह सुबह जाती और दोपहर के वक्त स्कूल से पढ़ा कर आती। जब मैं घर आती तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। वक्त गुजर रहा था। एक दिन मेरा रिश्ता आया। अम्मा अब्बा ने उन्हें हाँ कर दी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। उसके बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन मुझे न जाने क्या हुआ पड़ा था। ना मैं खुश थी ना मैं उदास थी, बस चुप थी, जैसे मुझे किसी से कोई गर्ज ही ना हो। दिन कैसे गुजरे पता ही ना चला। आखिर मेरी शादी वाला दिन आ गया। मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मुझे वो घर भी बहुत अच्छा लगा था। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो वो बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर पहले तो मुझे हैरत हुई कि वो तो इतना खूबसूरत था। उससे तो कोई भी मुझसे अच्छी लड़की मिल जानी थी, लेकिन उसने मुझसे ही शादी क्यों की? मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगा, क्या सोच रही हैं? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ जो आप इतनी गहरी सोच में पड़ गईं? उसकी तरफ देखकर मैंने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि मैं सोच रही हूँ आप इतने अच्छे हैं, बस यकीन नहीं आ रहा कि मेरी शादी आपसे हो गई है। वो मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहने लगा, अभी तो आपको बहुत कुछ यकीन करना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई। मैंने कहा, क्या मतलब? किस बारे में जानना है? वो कहने लगा, कुछ नहीं, वैसे बोल रहा हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। चंद दिन गुजरे। मेरा शौहर अपने काम पर चला जाता। मैं और मेरी सास घर पर रह जाती थी। मेरी सास सारा दिन मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछती। कभी किसी के बारे में पूछती, कभी किसी के बारे में, जैसे उन्हें लोगों के बारे में जानने का बहुत शौक हो। लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास दोस्तों की तरह मेरे साथ रहने लगी थी। मैं उन्हें हर बात बताती थी। आज मेरी सास मुझसे मेरी कज़न के बारे में पूछने लगी। वो मुझे कहने लगी, जब उन्होंने मेरी कज़न को पहली बार देखा था तो वो बहुत चुप खामोश थी। मैंने अपनी सास को बताया कि वो बहुत भोली सी है। उसे जो कोई कुछ कहता है वो वैसा समझने लग जाती है। इस वजह से उस दिन भी शायद उसकी अम्मा ने कुछ कहा हो और वो इस वजह से उदास हो। अपनी सास को बताती है, मेरी कज़न बहुत भोली सी है, लेकिन मेरी बहनों की तरह है। मैं अपनी सास के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उनके लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने हैरत से कहा, क्या हुआ है? ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, वैसे ही मुस्कुरा रही हूँ। कैसे तुम दोनों बहनों की तरह रहती हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, अब वो मुझे बहुत याद करती होगी। मैं अक्सर अपनी सास के साथ बाहर जाती थी। मेरी सास मुझे एक पार्क में बिठाकर न जाने किधर जाती थी, लेकिन मैं भी सुकून से पार्क में बैठ जाती थी। आज मैं यूं ही पार्क में बैठी हुई थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने हैरत से दूर खड़े लड़के की तरफ देखा जो न जाने क्यों मुझे घूरे जा रहा था। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और वहां से उठकर दूसरी जगह पर चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और मुझे कहने लगी, वहां से उठकर यहाँ पर क्यों आई? सब ठीक तो है? इनकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अभी मैं अपनी सास को कुछ बताने ही लगी थी कि अचानक मेरी नज़र उसी लड़के पर पड़ी। वो मुझे देखकर नफ़ी में सर हिला रहा था, जैसे वो मुझे मना कर रहा था कि कुछ मत बताना, और वैसे मैं बताने भी नहीं लगी थी। मैंने अपनी सास को कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस चलें घर चलते हैं। हम दोनों घर आ गई। घर आकर मैं कमरे में आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। न जाने वो कौन था और क्यों मुझे ऐसे देख रहा था। मुझे डर लग रहा था जैसे वो मुझे जानता हो। रात के वक्त जब मेरा शौहर आया, अब भी मैं परेशान थी। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, क्या हुआ है? क्यों परेशान हो रही हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो मुझे कहने लगा, लगता है मेरा भाई तंग करता है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उसका छोटा भाई था जो मुझे कुछ ना कुछ पकाने की फरमाइश करता था। इस वजह से उसे लगा शायद उसके भाई ने मुझे तंग किया है, लेकिन मैं उसे कैसे बताती? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं क्या करूं? वो कौन था? आजकल के लड़के भी बहुत शक करते थे, लेकिन फिर मुझे लगा शायद कोई वैसे हो जो मुझे घूर रहा हो। मैंने इस बारे में कुछ ना सोचा और ना ही अब मैं सोचना चाहती थी। अगले दिन सुबह के वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि मेरा नाश्ता कमरे में ही लेकर आना। मैं उनका नाश्ता बनाकर कमरे में ले गई तो वो कफ के बटन बंद कर रहे थे। मैंने कहा, मैं कर देती हूँ। मैं बंद करने लगी तो उसने मुझे खुद से दूर कर दिया। वो हमेशा ऐसा ही करता था। जब भी मैं उसके पास जाती या उसके पास जाने की कोशिश करती तो मुझे खुद से दूर कर देता था। मुझे अपने पास भी नहीं आने देता था। लेकिन ऐसे वो हर लिहाज से बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल भी रखता था, लेकिन मुझसे दूर दूर रहता था, और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। बाकी सब तो ठीक ही था। मैं चुप करके उसका नाश्ता रख के कमरे से बाहर आ गई। जब मैं कमरे से बाहर आई तो सामने मेरा देवर खड़ा हुआ था। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, भाभी क्या हुआ है?
आप मुझे परेशान लग रही हैं। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही मूड ऐसा है। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। वो ये कहकर आगे चला गया। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो मुझे खुद के करीब तो जाने नहीं देता, खुद से दूर दूर ही रखता है। इसमें मेरी क्या गलती थी या मेरा क्या कसूर था जो ऐसे करता है। लेकिन अब मैंने भी कुछ दिन के लिए उससे कुछ कहना छोड़ दिया था। आज फिर मेरी सास मुझे उसी पार्क में लाई। मैं वहां पर बैठी हुई थी। आज फिर मुझे वही नजर आया। आज फिर वो आदमी मुझे घूर रहा था और मुझे गुस्सा आने लगा। मेरा दिल क्या इसका मुंह तोड़ दूं। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई। जैसे वो आई मैंने उन्हें बताया, देखे ना, वो लड़का मुझे कब से घूर रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने उस लड़के की तरफ देखा, मगर वो दूसरी तरफ देखने लग गया। मेरी सास कहने लगी, कहाँ कोई घूर रहा है, बस तुम खुद ही सोच रही हो। उनकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं फिर आपको क्यों नजर नहीं आया, लेकिन वो काफी देर से मुझे घूर रहा था। मैं अपनी सास के साथ इस पार्क से निकलने लगी, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, वो मेरी तरफ देखकर नफी में सर हिला रहा था, जैसे वो मुझ पर अफसोस कर रहा हो। मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं सुकून से वहां से अपनी सास के साथ घर आ गई। मेरी सास मुझे कहने लगी, अगर तुम्हें कोई किसी किस्म की बात कहे ना, उसकी बात पर यकीन नहीं करना। मैंने अपनी सास की तरफ देखकर इस बात में सर हिला दिया। कोई जो मुर्जी कुछ कहता, अब मुझे भी कोई फिक्र न थी। मैं बस खुश थी। मुझे अब फिक्र नहीं थी। बस मुझे कभी कभी अपने शौहर का रवैया बुरा लगता था। रात का वक्त था। मेरा शौहर कमरे में टहल रहा था। मेरी सास कमरे में आई और मेरे शौहर को कहने लगी, मुझे बाहर ले जाओ, घर में मेरा दम घुट रहा है। मैंने जल्दी से अपनी सास से पूछा, क्या हुआ है, मुझे बताएं। लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी, बस इतना कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा मैं भी बाहर साथ चलूं, मगर उन्होंने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया और अपने दोनों बेटों को लेकर बाहर की तरफ चली गई। मैं इस वक्त घर में अकेली हो गई। मुझे घर में बहुत डर लग रहा था। काफी रात हो गई थी, मगर अभी तक मेरे शौहर और बाकी नहीं आए थे। मैं इससे मुसलसल कॉल कर रही थी और मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी सास की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई। न जाने क्या हुआ होगा, कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा था। ऐसा भी करता है कोई भला। मैं न जाने रात के किस पहर तक घूमती रही। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और सामने अपने शौहर को देखते ही कुछ कहने लगी थी। अचानक मेरी नजर अपने देवर पर गई, जो किसी लड़की को पकड़े अंदर की तरफ जा रहा था। लड़की ने घूंघट ओढ़ रखा था। मैंने इस लड़की की तरफ देखा, फिर अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, ये कौन है। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, अंदर चलो, बताता हूँ तुम्हें। वो मेरा बाजू पकड़े मुझे कमरे में ले आया। मैंने फिर से पूछा, वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, वो मेरे छोटे भाई की बीवी है, तुम्हारी देवरानी। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मैंने कहा, ऐसे कैसे शादी हो गई। मेरा शौहर कहने लगा, बस ये लड़की मजबूर थी, फिर उससे मेरे भाई ने शादी कर ली। ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। मैंने उसे हैरत से देखा, कैसे उसे सोने की पड़ी हुई थी, और मुझे हैरत हो रही थी कि उसने ऐसे अचानक शादी भी कर ली थी। वो तो बाहर घूमने गए थे और वहां से वो अपने लिए बीवी लेकर आ गया। ये बात कोई छोटी तो नहीं थी। ऐसे कैसे भला कोई शादी करता है। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, सो जाओ, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। वो कैसे मजे से सो रहा था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था, वरना वो यूं तो नहीं गए थे तीनों। सुबह के वक्त मैं किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैंने देखा मेरी सास किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने अभी तक अपनी ये सास से कोई बात नहीं की थी इस लड़की के बारे में, लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन वो भी तो इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। न जाने क्यों नहीं कर रही थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मुझे एक बात तो बताएं। मेरी सास ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने इस लड़की के बारे में पूछना है तो मैं अभी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उनकी बात सुन के मैंने कहा, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा है। ऐसा भी क्या हुआ आप इस लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आई हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम इस बारे में ना सोचो। इनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, आप भी बहुत अजीब हैं। एक तो ऐसी लड़की को ब्याह कर लाएं जिसके बारे में आप कुछ जानती भी नहीं, ऊपर से मुझे कह रही हैं कुछ पूछूं भी ना। रुके, मैं खुद इस लड़की को देख कर आती हूँ। मैं ये कहकर कमरे की तरफ जाने लगी। मेरी सास ने मेरा बाजू पकड़ लिया और नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, वो लड़की तुम्हारे सामने नहीं आएगी। इनकी बात सुनकर मैंने कहा, क्यों, मैंने कौन सा उससे खा जाना है जो उसने मेरे सामने नहीं आना। मेरी बात सुनकर वो हंसने लग गई और कहने लगी, वो पर्दा करती है, इस वजह से। उनकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। भला कौन औरत किसी दूसरी औरत से पर्दा करती है जो वो मेरे सामने नहीं आ सकती। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी। इतने में मेरी सास कहने लगी, आज फिर मुझे एक जरूरी काम से जाना है,
तुम जल्दी से काम खत्म कर लो, फिर मेरे साथ आना। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो हर जगह मुझे क्यों अपने साथ लेकर जाती थी। मैं थोड़ी परेशान भी थी, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी थी, शायद वैसे ही मुझे साथ लेकर जाती थी। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में अपने शौहर के लिए नाश्ता लेकर आई। वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुझे कहने लगा, तुम बाहर जाओ। मैंने हैरत से उसकी लाल होती आंखों की तरफ देखा। वो मुझे बाहर जाने का कह रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो अपने आंसू रोक रहा हो। मैंने उससे पूछा भी क्या हुआ है। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं घबराती हुई बाहर आ गई। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, परेशान क्यों लग रही हो? इनकी बात सुनकर मैंने धीरे से कहा कि पता नहीं मेरे शौहर को क्या हुआ है, मुझे कमरे से बाहर भेज दिया, न जाने क्या हुआ है। मेरी सास के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया और वो कमरे की तरफ चले गई और मुझे सख्ती से मना किया कि मेरे पीछे मत आना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मेरी सास बाहर आ गई। उनके चेहरे पर अब सुकून था। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे उसकी बेइज्जती करके आई हूँ। मैंने गहरी सांस ली और अपनी सास की तरफ देखा और कहा, आप ऐसे क्यों करती हैं, जैसे मेरा शौहर कोई बच्चा हो, आप तो इससे डांट भी देती हैं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। उन्होंने कोई बात न की और कहने लगी, जल्दी से काम खत्म करो। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, इस लड़की को खाना देकर आऊं, मगर उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया। न जाने क्या था जो वो मुझे जाने ही न देती थी। मैंने फिर जाने की जिद न की, लेकिन मुझे तजस्सुस होता था। न जाने वो लड़की कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था कि उसकी अचानक से शादी होकर आ गई थी, और वो क्यों खुद को सबसे छुपाती थी। कोई तो वजह थी। रात के वक्त मैं मोबाइल में लगी हुई थी। पास ही मेरा शौहर बैठा हुआ था। अचानक मेरी अम्मा की कॉल आने लगी। मैंने कहा, अम्मा की कॉल है। मेरे शौहर ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने नफी में सर हिलाया और कॉल पिक की। दूसरी तरफ से अम्मा बेजार से लहजे में मुझसे बात कर रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, क्या हुआ है? अम्मा मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा शौहर किधर है? मैंने अम्मा को बताया कि पास ही है। इसके बाद मैंने अम्मा से काफ़ी बार पूछा कि वो परेशान क्यों हैं, मगर अम्मा ने मुझे कुछ ना बताया और ये कहकर कॉल कट कर दी कि अपना ख्याल रखना। और मुझे तजस्सुस हो रहा था कि ऐसा भी क्या हुआ था जिसकी वजह से अम्मा इतना परेशान थी। आज से पहले तो ऐसे अम्मा परेशान नहीं हुई। जब भी मुझे कॉल करती थी तबीयत के बारे में पूछती थी। मुझसे हर बार पूछती थी, तुम खुश तो हो ना? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बार पूछना ही भूल गई हो। मैंने भी फिर कोई बात ना की। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या कह रही थी तुम्हारी अम्मा? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। मेरा शौहर कहने लगा, अब तुम ना परेशान होकर बैठ जाना। वो ये कहकर लेट गया। मैं उसकी तरफ देखने लग गई। वो मुझसे कितना दूर दूर रहता था। जाने मेरे पास आने से न जाने क्या हो जाएगा। वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। मैं उसकी तरफ देख रही थी। उसे देखते हुए मैं वहां से उठकर बाहर आ गई। बेसाख्ता मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस ली। अचानक से मुझे पीछे से अपने देवर की आवाज़ आई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगा, रात के इस वक्त यहाँ पर क्यों बाहर खड़ी हुई हैं? उसकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो मुझे कहने लगा, जाकर सो जाएं। लेकिन उसकी बात सुनकर मैंने भी सर हिला दिया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गया। मैंने गहरी सांस ली और उससे पूछा, मुझे तुम्हारी अम्मा और भाई ने कुछ नहीं बताया इस लड़की के बारे में? यूं अचानक से उसके साथ शादी की है और कहाँ से लाए हो? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। मैं इस लड़की से मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, आपको तो बताया ही होगा अम्मा ने कि वो नहीं मिलने देंगी। इसका मतलब है वो नहीं मिलने देंगी और वो लड़की भी किसी के सामने नहीं जाती। मैंने कहा, ये कैसी बात हुई? मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे सामने भी नहीं आ सकती क्या? मेरी बात सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था उसकी बातें सुनकर। मैंने उससे कहा कि एक बार मिलने से क्या हो जाएगा? मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। वो मुझे नजर आती है, उससे बात करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, बस एक बार उसके बारे में बता दिया ना कि वो किसी से नहीं मिलती, तो बस आपसे भी नहीं मिलेगी। आप भी इसके बारे में सोचना छोड़ दें, बस यूं ही सोच रही हैं। इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, अच्छा ना दिखाओ, तुम्हारी जो हूर परी को मैंने नजर लगा देनी है, इस नजर से तुम उसे बचा लेना। मैं गुस्से में ये कहकर चली गई, लेकिन मुझे अब दाल में कुछ काला लग रहा था। जरूर कोई बात थी, कोई बिला वजह खुद को नहीं छुपाता। बस मैं उसे देखना चाह रही थी। दिन गुजरने लगे। उसकी बीवी तो हर वक्त पर्दे में रहती थी। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता ये कहना छोड़ दिया कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तजस्सुस तो बाकी था। मुझे इतना भी मालूम था कि उससे मेरे शौहर ने देखा हुआ है, लेकिन बस मैंने ही नहीं देखा हुआ। मैं सोच रही थी, अब मुझे कुछ करना चाहिए कि मैं एक बार इस लड़की को देख लूँ। मैं अपने शौहर के साथ बाहर शॉपिंग पर आई हुई थी।
मैं चीजें खरीद रही थी और मेरा शौहर बाहर की तरफ गया। मैं चीजों को देखने में मगन थी। अचानक से मैंने मुड़कर देखा, वही लड़का मुझे देख रहा था। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लग गई। वो तो पुलिस वाला था। आज वो अपने यूनिफॉर्म में था। मैंने डरते हुए दूसरी तरफ देखा। मेरे हाथ कांपने लग गए। अब तो मुझे ज्यादा ही डर लग रहा था। वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी था। कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसे भी डर लग रहा था और पूछना भी चाह रही थी कि वो मेरे पीछे क्यों होता है। मैं डरते हुए उसकी तरफ जाने लगी। अचानक मुझे पीछे से अपने शौहर की आवाज़ आई। वो मुझे कहने लगा, कुछ पसंद भी आया है? मैंने पहले अपने शौहर की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ देखा। वहां पर अब वो पुलिस वाला नहीं था। न जाने अचानक से वो किधर चला गया। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद न जाने मेरे शौहर को क्या हुआ। मुझे कहने लगा, घर चलो। मैंने हैरत से पूछा, अभी क्या हुआ है? मगर उसने मुझे कहा, चलो यहाँ से। मैं भी बाहर आ गई। वो अपनी पेशानी से पसीना साफ कर रहा था। न जाने क्यों वो डरने लग गया। अचानक से मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? ऐसे डर क्यों रहे हैं? मगर उसने मुझे कोई जवाब ही न दिया और कहा, बस घर चलो। थोड़ी देर बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद वो न जाने किधर चला गया। मुझे तो नहीं मालूम था वो क्यों गया है। मेरी सास मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है, वो इतना परेशान क्यों था? अपनी सास की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि वो क्यों इतना परेशान था। बस इसने मुझे कहा, घर चलो। मैं अपनी सास को बताकर अपने कमरे में आ गई। मेरे सामने बार बार पुलिस वाले का चेहरा आ रहा था। न जाने क्यों वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने सोचा, यहाँ पर तो किसी को कुछ नहीं बता सकती, अपनी अम्मा को बताती हूँ। मैंने अम्मा को कॉल की। अम्मा ने काफ़ी टाइम बाद कॉल पिक की। न जाने कहाँ मसरूफ़ थी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही अम्मा मेरा हालचाल पूछने लगी। मैंने अपनी कज़न का हाल पूछा तो अम्मा ने बात ही बदल दी और पूछने लगी, आना कब है? मैंने कहा, अभी तो कोई आने का इरादा नहीं, जब आना हुआ बता दूंगी। मैंने ये कहकर कॉल कट कर दी। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अम्मा ने ऐसे बात क्यों बदल दी थी? मुझे मेरी कज़न के बारे में कुछ बताया भी नहीं था। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मुझसे तो ज्यादा उससे प्यार करती थी। खैर, मैंने जाने दी बात। इस बारे में कुछ ज्यादा न सोचा। चंद दिन गुजरे। मेरा शौहर घर से बाहर रहने लगा। दूर तो वो पहले ही मुझसे था, अब कुछ ज्यादा ही। अब वो रात देर से घर आता था। मुझसे बातें बहुत करता था, लेकिन रहता तो मुझसे दूर ही था। आज मैंने शाम के वक्त देखा, मेरी देवरानी मुंह छुपाए किचन में कोई काम कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कर रही हो? वो एकदम से डर गई। उसके हाथ कांपने लग गए। मैंने कहा कि मैं तुम्हें खा तो नहीं रही, अपना चेहरा ही दिखा दो। तुम्हारे शौहर ने तो ऐसे तुम्हें छुपा कर रखा हुआ है जैसे मैंने तुम्हें खा जाना है। कुछ नहीं कहती, बस तुम्हारा चेहरा देखना है। मेरी बात सुनकर वो मुंह छुपाए जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने उसका बाजू पकड़ा। इतने में मेरी सास आ गई और कहने लगी, क्या कर रही हो? जब बताया है वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती तो जिद क्यों कर रही हो? और मैंने अपनी सास की तरफ देखकर पूछा, क्या ये बोल भी नहीं सकती? मेरी सास कहने लगी, हर किसी के साथ नहीं बोलती। अपनी सास की बात सुनकर मुझे तो लग रहा था, ये लड़की जरूर कुछ अलग है। इसमें कोई तो खास बात है जिसकी वजह से ये ऐसे है, वरना कौन यूं खुद को छुपा के रखता है? कौन ऐसे करता है जैसे वो कर रही थी? वो बाहर चली गई। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मैं भी इस लड़की को देख कर रहूंगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अच्छा तुम इससे देखना चाहती हो? क्या पता शायद तुमने इससे देखा हुआ हो। अपनी सास की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने हैरत से कहा, अच्छा कौन है ये जिसे मैंने भी देखा हुआ है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं वैसे कह रही हूँ कि शायद देखा हुआ हो, लेकिन तुमने इससे देखकर करना क्या है? मैं ही बता देती हूँ, प्यारी सी बच्ची है। इनकी बात सुनकर मैंने कहा, प्यारी तो होगी ही, आप ऐसे अचानक जो ब्याह कर लाई हैं। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की रिंगटोन भी मैंने देखा कोई रॉन्ग नंबर था। मैंने कॉल पिक की और पूछा, कौन? दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज़ आई। वो मुझे कहने लगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और मुझे तुमसे नहीं मिलना? वो कहने लगा, ठीक है ना मिलो, सारा नुकसान आपका ही होगा। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें अपने ससुराल वालों पर कभी कोई शक पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। वैसे मेरी तो ड्यूटी है आपको बचाना, मगर आप बचना नहीं चाहती। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। ये कौन था? अब मुझे याद आने लगा, शायद ये वही लड़का है जिसे मैं पार्क में देखती थी। अब मुझे लग रहा था जरूर कुछ गलत है, जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो मुझे कहने लगा, आपको कुछ बताना। क्या आप मुझे कल मिल सकती हैं? उसकी बात सुनकर मुझे तो डर लग रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है मिल लेते हैं, लेकिन मैंने घर वालों से छुप कर आना है, वो मुझे अकेले आने नहीं देंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, सब जानता हूँ, क्यों नहीं आने देते, लेकिन तुम फिक्र न करो, सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें बहुत जल्द। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, चलो जी ये भी ठीक है, शायद इसी वजह से मुझे अपनी देवरानी के बारे में भी पता चल जाए।
رات کے وقت میں کچن کی طرف جا رہی تھی، اچانک میری نظر اپنی دیورانی پر پڑی جو کہ منہ چھپائے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں منہ چھپا لیتی تھی۔ اگلے دن میں اور میری دیورانی ہی گھر پر تھیں اور میری ساس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ گھر سے مت نکلنا۔ اس وجہ سے میں نے اس سے کال کر کے بتا دیا میں آج نہیں مل سکتی۔ وہ پہلے تو تھوڑا پریشان ہوا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے کل مل لیں گے، لیکن کل ضرور ملنا مجھ سے، ورنہ بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں ڈرا بھی رہی تھیں، نہ جانے کیا ہونے والا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسے بول رہا تھا۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنی دیورانی کو چھپ کر دیکھوں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں دھیرے سے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ نقاب میں نہیں ہے، ویسے ہی کمرے میں ہے۔ میں نے چھپ کر اس کی طرف دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ تو میری سگی کزن تھی، میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ وہ مجھ سے منہ چھپانے لگی۔ میں نے غصے میں کہا اب منہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہاری شکل دیکھ چکی ہوں، تم میری کزن ہو۔ اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تم نے آخر مجھے دیکھ لیا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی اماں ابا کو مت بتانا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کیوں ان کو نہیں پتا کیا تمہاری شادی کا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی اور میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے غصے میں کہا سچ کیا ہے، مجھے سچ بتاؤ۔ وہ میری طرف دیکھ کر ڈرتی ہوئی کہنے لگی کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی شادی پر میں نے آپ کے دیور کو دیکھا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس سے محبت ہونے لگ گئی، لیکن پہلے میسج اس نے مجھے کیا، ہم باتیں کرتے تھے، لیکن ایک دن پتہ ہے کیا ہوا، اس نے رشتہ بھیجا لیکن ابا نے انکار کر دیا، کہا کہ وہ میری ابھی تک شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ مجھے کہنے لگا میرے گھر والے راضی ہیں، تم بھاگ آؤ گھر سے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں ایک رات گھر سے بھاگ آئی۔ اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ نکاح ہونے کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ تم میری بھابھی کے سامنے نہیں جاؤ گی، نہ ہی اسے چہرہ دکھاؤ گی، ایسے تو وہ تمہارے ابا کو بتا دے گی، اس وجہ سے میں آپ کو شکل نہیں دکھا رہی تھی۔ مجھے اس کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں کچھ دیر کے لیے گھر سے جا رہی ہوں، اگر کوئی آئے تو کہنا وہ بازار تک گئی ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہاں جا رہی ہو، لیکن میں نے اس سے کچھ نہ بتایا اور اس پولیس والے کو کال کی اور کہا میں اسی پارک میں ملنے آ رہی ہوں۔ وہ کچھ کہنے بھی لگا۔ میں نے اسے کہا جلدی ملو، مجھے بھی ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شخص کچھ تو خاص جانتا ہے جس بارے میں مجھے نہیں معلوم، اسے معلوم ہوگا۔ میں تھوڑی دیر بعد پارک میں پہنچی، وہاں پر وہ پولیس والا بھی تھا۔ میں جلدی سے اس کی طرف گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ بات جلد بازی میں نہیں کرنے والی، تم آرام سے بیٹھو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے تو ڈر لگنے لگ گیا تھا، جیسے وہ سیریس موڈ میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ایسی بھی کیا خاص بات ہے؟ میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ وہ مجھے کہنے لگا تمہارا شوہر لڑکیاں اسمگل کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا، گویا مجھے اپنے کانوں پر یقین آیا۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا سچ کہہ رہا ہوں، اور اب اس کا نشانہ آپ اور آپ کی کزن ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کیا بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فضول باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا آپ سکون سے بیٹھیں تو میں بتاتا ہوں۔ دراصل آپ کے شوہر کا ایک گینگ ہے جو ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں، کچھ عرصے ساتھ رکھتے ہیں، محبت کا یقین دلاتے ہیں، پھر انہیں باہر کے ملک اسمگل کر دیتے ہیں۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے بتانے لگا وہ کافی عرصے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پہلے وہ شادی کرتے ہیں پھر اسمگل کر دیتے ہیں۔ اس نے مجھے ان کے گینگ کے بارے میں بتایا۔ پولیس والا کہنے لگا ان کے خلاف آپ کو بس گواہی دینی ہے، ان کے خلاف ثبوت بس اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی طریقے سے ان کا بس سارا گینگ اکٹھا ہمیں مل جائے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا، نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا۔ میں گھر آ گئی۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کہا میں سوچ رہی ہوں آپ اپنے دوستوں کی دعوت کر لیں۔ میری طرف دیکھ کر وہ کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ جب وہ لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں تو ان کے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے سوچا سب اکٹھے ہوں گے تو میں پولیس کو بلا لوں گی، مگر وہ کہنے لگا ہم کسی اور جگہ پر انہیں بلا کر ان کی دعوت کریں گے۔ میں مان گئی۔ میرے شوہر نے جو جگہ بتائی میں نے اس کے بارے میں پولیس والوں کو بتا دیا۔ چند دن بعد ہم وہاں آئے جہاں اس کے دوستوں کی دعوت تھی، لیکن جب دعوت شروع ہوئی تو میں نے سارا پلان اپنی کزن کو بتا دیا تھا۔ سارے باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے اب حیرت ہو رہی تھی، ان کے گینگ میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ اسی وقت پولیس نے چھاپا مارا اور وہ سب پکڑے گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا تم ہم سے کھیل رہے تھے اور ہم تم سے کھیل رہی تھی، دیکھو اب اپنا انجام۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ سارا گینگ تو پکڑا گیا۔ اماں ابا نے بھی شکر کیا کہ ان کی بچیاں بچ گئیں، لیکن چاچو کو اپنی بیٹی پر بہت غصہ تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو میرے چاچو کی بیٹی کا رشتہ تو ہو گیا، لیکن میرا نہیں ہو رہا تھا۔
ایک دن مجھے وہ پولیس والا ملا اور مجھے کہنے لگا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے حیرت تو ہوئی۔ وہ کہنے لگا جب آپ کو پارک میں دیکھتا تھا محبت تو تب ہی ہو گئی تھی، لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن میری بھی شادی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔